था. Today we are going to use another platform for our practice. यहाँ पे here you will get more tables, more exposure to the to the data, and at last जैसे मैंने लास्ट कल की क्लास में किया था, मैं सारी जो क्वेरीज हैं वो आपको यहाँ पे कॉपी करके दे दूंगा. ओके. So we have yesterday started with SQL only. Today we are going to practice this part again. So जो छोटी छोटी चीजें हमने देखी थी एक बार उसको क्विकली हम रिवाइज करते हैं and we'll move further. So one thing we saw the select command. So select a star and then from. Now we have multiple tables. So here we have multiple schemas. You can see we have multiple schemas. So HR schema is there. So schema is basically at the current term we can say this is the collection of tables. Okay. So यहाँ पे now suppose I have the sales history table. In sales history we have many tables are there and I want to see the table of customers. Okay, so this is customer table. I want to see the details of the customers over here. So I am just giving sh dot countries. Okay, so I am taking this. I'm just executing this part. So I'll just select this and I'll execute this. So you can see output is coming at down and you can see the entire table over here. All the table values are here. So country ID, country ISO code, country name, subcategories, subcountry, subcategory, region, country total. All these things are coming like this. Okay, the entire table is here. Now I want only few values only. I don't want everything. So this will be select. Suppose I want the country underscore ID, comma, country underscore name, comma, and let's suppose I want country region and country region I want. Okay, so I'm giving country underscore region, REGIO region from sh dot countries. Okay, ये हमने सेलेक्ट किया एंड हमने यहाँ पे इसको रन कराया. सो नाउ यू कैन सी ओनली वी हैव कमिंग द फील्ड्स दैट आई हैव गिवन, जैसे हमने कल देखा था. ठीक है. तो now what I want is I want all the country names which belong to country region as Europe or Asia, whatever we condition. I want to apply a condition. So now I am following with this, and then I am giving where country underscore region is equal to, and I am giving this Asia. Let's suppose Asia I am giving, and I'm executing this. I'll just execute and run. Okay. तो ओके यहाँ पे सिंगल आइडेंटिफायर होता है. यहाँ पे ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग चीजें चलती है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सिंगल लगाएंगे डबल लगाएंगे. राइट. सो नाउ यू कैन सी ऑल द कंट्रीज फ्रॉम द एशिया आर हियर. ओके. सो एनी डाउट विद दिस? Any doubt with this? No, sir. Now let's suppose we have something else like sales table I have. Okay, so in sales table we have promotion, product ID, customer ID, time ID, channel ID, quantity sold and amount sold. Okay, so let's see this table और इसमें भी हम कुछ condition लगा के देखते हैं. Let's see select star from sh dot save. Okay, I'm just executing this part. So you can see I have got many things over here and there are many number of records are there. Now let's see, we have I'm a values where amount sold might be more than 50. Okay, let's see, we have amount sold more than 50. So where
amount underscore sold is greater than or equal to 50. I'm just $50 से ज्यादा की चीजें यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं. Okay, so let's see. Now it is giving the value which are more than 50. Okay, only the values which are more than 50 are coming over here. Okay, so this is how you can apply the condition, single condition. Now, if you want to apply the multiple conditions, so you can apply the multiple conditions. So here, now suppose I want amount from more than 50 and suppose channel ID. Okay, channel underscore ID is equal to 3. Okay, I'm just giving this. Okay, so here now when both condition will true, then it will execute. So channel ID only 3 is coming now over here. Okay, any doubt? This is what we covered. Apart from that, we also covered the in and between. So between was for numbers and in was it in can be used for numbers and these character values as well. Okay, and then we saw the wildcard characters also. So if we don't know the exact information, if we know something approximate, we can use these wildcard characters as well. Okay, then next thing we saw was aggregation. Okay, so aggregation aggregation is all about starting with count. Then we have sum or let's suppose sum and min, max, and mm, average. Okay, these all are the main things. Okay, now suppose you have a table. You want to count all how many records are there. So for example, we have data like this. Okay, so we saw this data. Okay, हमने यहाँ पे ये डेटा देखा, यहाँ पे डेटा इस तरह से दिखाई भी दे रहा है. अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई है. वी हैव अप्लाइड द कंडीशन ओवर हियर एंड व्हाट आई वांट इज आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका अमाउंट 50 से ज्यादा है और चैनल आईडी 3 है. आई जस्ट वांट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पे देख के तो हमें पता नहीं लग रहा है. ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है. तो यहाँ पे 203 200 252 के ऊपर तो पहुंच ही गए हैं, 300 के ऊपर पहुंच गए. ठीक है, जैसे हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आई वॉन्ट टू सी दैट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर. आई वॉन्ट टू सी दिस, राइट. तो यहाँ पे लगा देंगे सिंपली काउंट, राइट. तो हमने यहाँ पे सिंपली काउंट लगाया. अब क्या करेगा, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इसको रन कराया, राइट. सो इट इज रिटर्निंग मी दैट देयर आर 1,72,902 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमें दिखा रहा है कि टोटल टेबल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं. तो यू कैन जस्ट नेम ऑल्सो एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. So total 1,72,902 records हैं which are satisfying this condition. Okay. ये इस कंडीशन के लिए ही है, ये पूरे टेबल में नहीं है. अगर आप यहाँ पूरे टेबल में देखना चाहते हो, सिंपली आप पूरे टेबल वाला जस्ट लगा दो, यहाँ पे पूरे टेबल में दिखा देगा. तो मैंने वही उतना ही पार्ट सेलेक्ट किया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 9,18,000 रिकॉर्ड्स हैं. ठीक है, टोटल टेबल में 9,18,000 रिकॉर्ड्स हैं. अब जब हम इसको इसके साथ में सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है 1,72,000 रिकॉर्ड्स हैं जिनका अमाउंट 50 से ज्यादा है और चैनल आईडी 3 है. ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, ग्रेट. सो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी जो जो डेटा है उसको यहाँ पे शो कर सकते हो. अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है कि जो ये हमने यहाँ पे काउंट लगा दिया. ठीक है, अब यहाँ पे और हमें काउंट करना है. अब लेट्स सपोज लेट्स अगेन सी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ss डॉट सेल्स.
ठीक है, तो हम अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसमें और भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चैनल आईडी है मान लो, तो अब यहाँ पे कितने चैनल आईडी हैं हमारे पास ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कितने चैनल आईडी हैं ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, कल हमने देखा था। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एंड channel underscore id and from sh dot save। ओके, चैनल आईडी आपकी कितने हैं डिस्टिंक्ट ये हमें यहाँ पे पता लग जाएंगे। हमने यहाँ पे इसको एंटर किया, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये सारे चैनल आईडी हैं पूरे टेबल में। ठीक है, 4 ही चैनल आईडी हैं, 9 लाख रिकॉर्ड्स हैं इस टेबल में, और यहाँ पे हमारे पास 4 चैनल आईडीज हैं, इसी पे सारी चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, अब इसी में हमें देखना है कि ये जो चैनल आईडी है इसमें से हर चैनल आईडी पे कितने रिकॉर्ड्स हैं। राइट, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें काउंट लगाएंगे, काउंट चैनल आईडी। ओके, अब जब हम अब हमने यहाँ पे किसी एक टेबल किसी एक फील्ड पे काउंट लगाया है। यहाँ पे जो हमने काउंट लगाया था, यहाँ पे देखो हमने पूरी पूरी टेबल पे हमने काउंट लगाया था, तो हमें किसी को भी ग्रुप करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड आउट करने थे। लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं। वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर वैल्यू। So what we'll do is we have to do the group by for aggregation. And since we are grouping, since we want a count on channel ID, so यहाँ पे grouping में भी हमें channel ID ही देना पड़ेगा, तब ये उसको ग्रुप करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने इसको रन कराया। So यहाँ you can see over here for channel ID 3 there are 5,40,000 records. Channel ID 2 2,58,000 records are there. For channel ID 4 1,18,000 records are there. For channel ID 9 2,000 records are there. Clear? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? सर थोड़ा एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है? ग्रुप बाय सर। ग्रुप बाई। सो ग्रुप बाई किस लिए होता है बेसिकली? ग्रुप बाई इज यूज्ड group by is used for aggregation। ठीक है, सो एग्रीगेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? हमारे पास होता है सम, हमारे पास होता है काउंट, फिर होता है हमारे पास मिन, ये एवरेज होता है, फिर मिन और मैक्स। ये मोस्टली 5 जो वाइडली यूज फंक्शन होते हैं वो हम ग्रुप बाई के थ्रू करते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे हमें हमें करना क्या है, ये चैनल आईडी हमारे डिस्टिंक्ट है वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि कौन कौन से चैनल आईडी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब टोटल पूरी टेबल में यहाँ पे 9 लाख रिकॉर्ड्स हैं, तो इन 9 लाख रिकॉर्ड्स में से कितने हमारे पास चैनल आईडी 2 में है, कितने 4 चैनल आईडी 4 में है, कितने चैनल आईडी 3 में है, कितने चैनल आईडी 9 में है, ये हमें अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। राइट, तो हमने यहाँ पे काउंट फंक्शन लगाया। राइट, एंड यहाँ पे काउंट के अंदर चैनल आईडी डाल दिया। अब क्योंकि काउंट को हमने सॉरी सेलेक्ट के साथ हम शुरू में डिस्टिंक्ट ले रहे हैं ना सर, ये किस लिए है हाँ, तो लेट मी शो यू। सेलेक्ट के साथ में हम डिस्टिंक्ट यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी चैनल आईडी है। अगर हम यहाँ पे आप पूरी टेबल में देखोगे, तो यहाँ पे हमने इसको सपोज रन कराते हैं, तो यहाँ पे हमें आपको चैनल आईडी दिखाई दे रही है। अब सपोज यहाँ पे तो 9 लाख रिकॉर्ड है। अब 9 लाख रिकॉर्ड में जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे पास 9 लाख चैनल आईडीज हों। चैनल आईडी तो कॉमन हो सकती हैं। यस सर। राइट, तो अब यहाँ पे कौन कौन सी चैनल आईडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे चैनल आईडी क्या क्या है, हमें चैनल आईडी की यूनिक वैल्यूज चाहिए। ठीक है, यस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट चैनल आईडी। तो डिस्टिंक्ट क्या करेगा, चैनल आईडी में जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो हमें निकाल के दे देगा। तो हम इसको रन कराते हैं यहाँ पे, तो इसने हमें निकाल के दे दिया कि 4 चैनल आईडी ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। 9 लाख रिकॉर्ड्स हैं लेकिन चैनल आईडी सिर्फ 4 ही हैं।
ठीक है। अब एक चैनल आईडी कौन सी है, ये यहाँ पे अगर कोई चैनल की टेबल है तो वो आप यहाँ से उठा के देख सकते हो। तो यहाँ पे इतना चैनल आईडी है, चैनल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो उसके बेस पे आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो, लेकिन इस टेबल में 4 चैनल आईडी ही यूज हो रही हैं। राइट। अब हर चैनल आईडी से कितना यहाँ पे सेल आ रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी में काम करते हो, राइट। अब एडवर्टीजमेंट कंपनी में आप अपना जो ऐड देते हो, सपोज वो आप एफएम पे भी ऐड दे रहे हो, आप टीवी पे भी ऐड दे रहे हो, आप न्यूज़पेपर भी ऐड दे रहे हो, और आप ऑनलाइन भी ऐड चला रहे हो, तो ये 4 अलग अलग चैनल हैं। अब आपके पास अगर लीड्स आती हैं या इंक्वायरी आती हैं, तो उससे सबसे पहले आप क्या कलेक्ट करोगे कि ये लीड हमारे पास कहाँ से आई। राइट। ये हमारे पास एफएम का एड सुन के आई है, या लिंक्डइन से आई है, या फेसबुक से आई है, या कहाँ से आई है, ये हमें फाइंड आउट करना है। राइट। तो वही हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो पहली चीज कि हमें फाइंड आउट कर लिया। अब सपोज हमारे पास 10 लाख लीड्स आई हैं, तो 10 लाख लीड्स में से कितनी लीड हमारी एफएम से आई हैं, कितनी लीड हमारी टीवी एड से आई हैं, कितनी लीड हमारी न्यूज़पेपर एड से आई हैं, कितनी लीड हमारी ऑनलाइन पब्लिसिटी से आई हैं। ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे बेसिकली काउंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको काउंट करते हैं, काउंट चैनल आईडी। ओके, चैनल आईडी। ओके, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे ही हमने चैनल आईडी यहाँ पे हमने डाला, अब ये क्या करेगा कि इंडिविजुअल चैनल आईडी पे कितनी वैल्यूज हैं ये यहाँ पे हमें काउंट करके देगा। राइट। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि इसको पता कैसे लगेगा कि ये चैनल आईडी पे ग्रुप करे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ग्रुप बाय देना होगा, ग्रुप बाय। और यहाँ पे हमने दिया चैनल आईडी। सो ग्रुप बाय जब आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे हमने डाला और इसको हमने यहाँ पे रन कराया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब 9 लाख वैल्यूज में से इसने यहाँ पे हमें दिखा दिया। सर यहाँ पे ग्रुप बाय करना क्यों जरूरी था? ग्रुप बाई फंक्शन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे काउंट को यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ग्रुप बाई नहीं यूज करते हैं, सपोज लेट्स हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं और फिर हमने इस पार्ट को रन कराया, तो यहाँ पे ये एरर जनरेट करेगा। ये एरर जनरेट करेगा क्योंकि ये ग्रुपिंग फंक्शन है। काउंट में आप चैनल्स को ग्रुप कर रहे हो एक साथ। राइट। यस सर। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं लगाओगे तो ये ग्रुपिंग फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है। ओके सर। ये समझ में आ गया। आगे बढ़े। यस सर। मान, मानसी, चिंकी एंड शिवानी। यस सर। ओके, ग्रेट। So this is how we can do the grouping of the values. अब इसमें कभी कभी आप इस तरह से भी कर सकते हो कि यहाँ पे हमने दिया कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमने इसको, यहाँ पे आप कंट्रोल स्टार भी कर सकते हो। तो कंट्रोल स्टार करोगे तो भी यही रिजल्ट आएगा लगभग हमारा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे काउंट स्टार शुरू में किया था। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखा रहा था। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी काउंट स्टार किया है, तो काउंट स्टार में भी वही रिजल्ट आएगा जो यहाँ पे हमने चैनल आईडी दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम चैनल आईडी वाइज ग्रुप ग्रुप कर रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे हम ग्रुप कर देते हैं, सेल्स में हम कस्टमर आईडी वाइज ग्रुप में डिस्टिंक्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कस्ट अंडरस्कोर आईडी हमने डिस्टिंक्ट वैल्यू डाली, और यहाँ पे अब हम चैनल आईडी को हम अलग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने चैनल आईडी डाला है और यहाँ पे हमने कस्ट आईडी डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसने कह दिया, क्योंकि हम जो ग्रुप कर रहे हैं वो तो हम चैनल आईडी पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट फाइंड आउट किया फिर इसके बेस पे हम ग्रुपिंग लेके आ रहे हैं, तो ई ना चोलबे, ये नहीं चलने वाला। ठीक है। तो जो जिस जिस फील्ड को आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ग्रुपिंग के लिए, उसी के बेस पे आपको यहाँ पे ग्रुप भी करना होगा, जिस ग्रुप को आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। अब हम यहाँ पे दे दिया कस्टमर आईडी, हमने यहाँ पे दे दिया और इसको हमने रन कराया। तो अब यहाँ पे देखो कस्टमर आईडी वाइज हर कस्टमर ने हर कस्टमर के कितने सेल्स रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे इसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है।
doubt? Any doubt with this? Clear है शिवानी, मानसी? Yes, sir. तो दिस इज हाउ यू कैन डू द ग्रुपिंग. अब इसमें ग्रुपिंग में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं. अब जैसे यहाँ पे हमें अमाउंट सोल्ड है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि किस कस्टमर ने टोटल कितना अमाउंट सेल किया है, सेलिंग कराई है, कितना कितने अमाउंट का सामान लिया है. तो हमने यहाँ पे दे दिया कस्ट अंडरस्कोर ID कॉमा सम ऑफ अमाउंट अंडरस्कोर सोल्ड. ओके, देन फ्रॉम एसेट डॉट सेल्स, और यहाँ पे हम ग्रुप बाय कस्टमर आईडी देंगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर आईडी यहाँ पे इधर आ रहा है, अमाउंट सोल्ड इधर आ रहा है. ठीक है, तो अमाउंट सोल्ड एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, तो सम को हम जहाँ पे यूज करेंगे वो हमेशा एक न्यूमेरिक वेरिएबल होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सम कराया, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर आईडी वाइज बंदे ने कितने अमाउंट का की परचेजिंग करी है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. जैसे 9317 इसने 50,000 की सेल करी, ये आईडी इसने 15,000 की सेल करी है, फिर और कोई आईडी है उसने और भी ज्यादा की सेल करी है. तो टोटल सेल्स की वैल्यू हमें यहाँ पे पता लग रही है. ठीक है, आप इसमें आप यहाँ पे मल्टीपल चीजें भी डाल सकते हो कि अब सपोज यहाँ पे हमें काउंट भी डालना है, तो काउंट हमने डाल दिया, काउंट ऑफ कस्टमर आईडी. यहाँ पे काउंट स्टार ही कर देते हैं. ठीक है, फिर मैक्स ऑफ अमाउंट सोल्ड एंड मिन ऑफ अमाउंट सोल्ड. यहाँ पे फिर हमने एवरेज भी दे दिया, एवरेज ऑफ अमाउंट अंडरस्कोर सोल्ड. ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी हम एक साथ पैरामीटर्स यहाँ पे ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम भी देते हैं एज काउंट कस्टमर्स. ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दिया एज अमाउंट, फिर यहाँ पे हमने दिया एज मैक्सिमम अमाउंट, और यहाँ पे हम दे देते हैं एज मिनिमम मिनिमम अमाउंट. ओके, और अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं. आप यहाँ पे देखोगे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें हमें आराम से दिखाई दे रही हैं. तो यहाँ पे कस्टमर अमाउंट कितना है, हर कस्टमर ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, देन मैक्सिमम अमाउंट कितना है, मिनिमम अमाउंट कितना है, और एवरेज अमाउंट कितना है. तो एवरेज अमाउंट का हमने कोई नाम नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सा आ रहा है. ठीक है, ये इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? फॉर एवरीवन इज इट क्लियर? Yes, Okay, sir. okay, thank you for the confirmation. And now we'll move forward. So aggregation सबको समझ में आ गया? एग्रीगेशन क्या होता है? अब यहाँ पे एग्रीगेशन में भी आपको कंडीशन लगानी है. ठीक है, एग्रीगेशन में भी हमें कंडीशन लगानी है. तो जब हमें एग्रीगेशन के साथ में कंडीशन लगानी होती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक एडिशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, दैट इज हैविंग स्टेटमेंट. अब यहाँ पे अब सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि जो कस्टमर आईडी है, तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग कस्टमर आईडी पे कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो हैविंग कंडीशन लगाएंगे, हैविंग में भी जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे वो कस्टमर आईडी के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं. हम किसी दूसरी वैल्यू के ऊपर हैविंग कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते. ये एक जनरल रूल है कि अगर आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, तो कंडीशन जो अप्लाई है वो हम हैविंग के थ्रू करेंगे. तो लेट्स से हमने यही वाला पूरा यहाँ पे लिया, और यहाँ पे हमने डाला, और यहाँ पे हैविंग कस्टमर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इज ग्रेटर देन, लेट्स से व्हाट कैन बी,
कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 1000, ओके, और 9000 हम कर लेते हैं। आपको कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 9000 यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे error starting line 4, what it is giving, this is max amount as max amount, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इन why this is giving me error, starting command is 6 group by, अभी ऊपर तो ये कमांड काम किया था। अब देखो काम कर गया अभी, शायद मैंने कुछ आधा अधूरा सेलेक्ट किया हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अब ये जो यहाँ पे कस्टमर आईडी आपको दिखाई दे रही है, ये सारी 9000 से ऊपर वाली ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे 9000 से नीचे वाली नहीं दिखाई दे रही। आप यहाँ पे अभी देखोगे तो 9000 से ऊपर है। अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहें, आप यहाँ पे सपोज मैं 15000 के ऊपर वाली सारी कस्टमर आईडी यहाँ पे देखना चाहता हूँ, तो हमने यहाँ पे डाला, को यहाँ पे हमने डाल दिया। So now you can see all the customer IDs are coming which are more than 15,000 वाली। Okay, so this is how you can apply the condition with having। तो अब यहाँ पे दो चीज आती हैं। दो चीज क्या है? यहाँ पे पहली चीज हमने यहाँ पे डिस्कस, हमने कल जो कंडीशन के लिए डिस्कस किया था, वेयर, और दूसरा हैविंग। ठीक है, ये दो चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो वेयर में भी हम कंडीशन लगाते हैं और हैविंग में भी कंडीशन लगाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Anyone? Anyone? दोनों में डिफरेंस आपको कुछ दिखाई दे रहा है, वेयर में एंड हैविंग में? वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या है? शिवानी, मानसी, कोई बताएगा? सर रिपीट करना एक बार, क्या बोल रहे हो? वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अभी हमने कल कंडीशन के लिए डिस्कस किया था वेयर स्टेटमेंट, यहाँ पे हम वेयर में भी कंडीशन लगा रहे थे। अभी हम यहाँ पे हम नया स्टेटमेंट आ गया हैविंग। कितना कंफ्यूजन करते हो सर। तो बतना हैविंग में, और हम कैसे याद रखेंगे कि हैविंग कब यूज होगा और वेयर कब यूज होगा? तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? आपको हैविंग तभी यूज होगा, हैविंग ओनली यूज्ड विद ग्रुप बाई। अगर ग्रुप बाई यूज किया है तभी आप हैविंग यूज कर सकते हो। अगर ग्रुप बाई नहीं यूज किया है तो हैविंग आप यूज नहीं कर सकते। हैविंग इज यूज्ड फॉर एग्रीगेशन ओनली। केवल एग्रीगेशन जहाँ पे आप करोगे वहीं पे हैविंग यूज करोगे, अदरवाइज यूज नहीं करोगे। तो इसमें आप सम, काउंट, मिन, मैक्स एंड एवरेज, यही फंक्शंस आप यहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा कोई भी फंक्शन यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। वो सारे फंक्शन जो एग्रीगेशन से रिलेटेड है, ठीक है। वेयर कैन बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ कंडीशन, ओके, लेकिन वेयर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एग्रीगेशन। जहाँ पे भी एग्रीगेशन आपको करना है वहां पे हम वेयर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अम, अब अगर हम यहाँ पे आउटपुट में डिफरेंस देखना चाहते हो तो आउटपुट में अगर हम, अगर सपोज यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं वेयर
तो वेयर कंडीशन क्या करती है कि वेयर कंडीशन पहले ही फिल्टर कर देती है, तो वेयर इज कंपैरेटिवली फास्टर। जब भी हम वेयर वेयर लगाते हैं तो ये डेटा को उठा के लेके ही नहीं आती है। अब हैविंग क्या करता है, हैविंग पहले डेटा पे कैलकुलेट करता है, इसके बाद फिर यहाँ पे जो जो भी कंडीशन लगाई है उसके वाइज यहाँ पे जो वैल्यू लगा के और उसको फिल्टर फिल्टर आउट करता है। ठीक है, तो इसीलिए वेयर हमेशा हैविंग से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है, थोड़ा सा फास्टर परफॉर्म करता है। ठीक है। ठीक है, ये चीज क्लियर ओके है सर। सबको। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत कि हैविंग में और वेयर में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको बताना होगा कि हैविंग को हम एग्रीगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ये केवल ग्रुप बाई के साथ में यूज होता है। वेयर को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं कंडीशन के लिए, लेकिन हम इसको एग्रीगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, हैविंग केवल ग्रुप बाई के साथ में ही यूज होगा। और इन इन केस ऑफ वेयर स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो वेयर को आप ग्रुप बाई के बाद नहीं डाल सकते, वेयर को आपको हमेशा ग्रुप, अगर ग्रुप बाई यूज किया है तो आपको ग्रुप बाई के पहले ही डालना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक खास चीज और है कि हैविंग में आप उन्हीं आईडी को यूज कर सकते हो जिनको आपने ग्रुप बाई किया है, आप किसी भी आईडी को हैविंग में यूज नहीं कर सकते, जबकि वेयर में हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमने बहुत सारी ग्रुपिंग की हुई है, और यहाँ पे कस्टमर हमने ग्रुप बाई तो कस्टमर आईडी के बेस पे किया है, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे सपोज लेट्स से हम प्रोडक्ट आईडी के बेस पे यहाँ पे कुछ कांड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी क्या है, सो लेट्स सी, हम यहाँ पे सेल्स में सेल्स से उठा लेते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी हमारे पास कौन कौन सी, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे हमारे पास 40 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 40 पे हम अगर कंडीशन लगाते हैं हैविंग में। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हमने दिया प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 40। ठीक है, सिर्फ हमने ये लगा दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर इसको रन कराते हैं तो ये हमें एरर थ्रो करेगा। अब ये एरर क्यों थ्रो करेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट आईडी जिसको हम यहाँ पे हैविंग में हम सम करा रहे हैं वो ग्रुप बाई में है ही नहीं, उसको हमने ग्रुप बाई परफॉर्म किया ही नहीं है। राइट, तो हैविंग में हम उन्हीं वैल्यूज को डालेंगे जिनको हम ग्रुप बाई करेंगे, अदरवाइज हम हैविंग में और कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, अब यहाँ पे कस्टमर आईडी वाइज हमने किया है तो हमें कस्टमर आईडी ही डालना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी डाला। ओके, और यहाँ पे हमने ग्रेटर देन, अभी तो हम इसको ऐसे ही रन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये अमाउंट इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अगर आप बोल नहीं रहे हो तो प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। ओके, अब हमें चाहिए, हमें केवल प्रोडक्ट आईडी के लिए ही ये डिटेल चाहिए, ये जो यहाँ पे जो हम सम देख रहे हैं। जस्ट टेक जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस। मैं पिक्चर ले लेता हूँ, इससे हमें पता लगे कि हमारे पास वैल्यू में क्या वेरिएशन आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे इसमें इस वाले पार्ट में हमने यहाँ पे वेयर लगाया, तो वेयर हमेशा ग्रुप के पहले लगेगा। वेयर, और यहाँ पे हमने दिया प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ पे हमने वेयर कंडीशन के साथ में दिया, तो हमने इसको अब यहाँ पे रन कराया। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो अमाउंट छोटा हो गया, केवल 40 प्रोडक्ट के लिए अब यहाँ पे कस्टमर आईडी का ये टोटल हमें हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अमाउंट छोटा हो गया, दिख रहा है। कैन एनीबडी ऑब्जर्व, पहले यहाँ पे 23226 आ रहा था और इसका अमाउंट था 21,278। यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स थे 240, यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट था 1057 और मिनिमम अमाउंट था 7। राइट, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई प्रोडक्ट आईडी 40, तो अब ये जो डिटेल आ रही है ये केवल प्रोडक्ट आईडी 40 के लिए आ रही है, और वहाँ प्रोडक्ट आईडी 40 के
कितने की कितनी सेल हुई है, कस्टमर का कितना, कितने कस्टमर है, कितना उसमें मैक्सिमम अमाउंट है, कितना मिनिमम अमाउंट है। ये चीज समझ में आ गई सबको? यस सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। देखो समटाइम्स यू कैन फील अ लिटिल ओवरवेलमिंग इन दिस, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े थोड़े से आपके लॉजिकल पार्ट लगने स्टार्ट हो जाएगा। समटाइम्स यू कैन फील कि ये क्या हो रहा है, या ये कैसे हो रहा है। तो जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको इनकी सारी रियलिटी समझ में आती जाएगी कि ये सारी चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक है, सो डू नॉट थिंक सो मच। मैं यहाँ पे आपको इनफ एग्जांपल दूंगा हर चीज को, हर टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, लेट मी कॉपी दिस कोड एंड टेक इट समवेयर। मैं लास्ट में यही कोड आपके ग्रुप में कॉपी कर दूंगा, तो ये आपके पास सेव भी, आप इसको किसी भी फाइल में सेव कर सकते हो। ठीक है, अब लेट्स टेक सम अदर वैल्यू, सम अदर टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम HR की टेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो HR की टेबल में हमारे पास यहाँ पे सब सपोज लोकेशंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लोकेशन में हमारे पास लोकेशन आईडी है, स्ट्रीट एड्रेस है, पोस्टल कोड है, सिटी है। ओके, सो नहीं, हम यहाँ पे एम्प्लॉयज वाले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बेटर एग्रीगेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज। ओके, ये हमने यहाँ पे लिया और इसको हमने यहाँ पे रन कराया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज दिखाई दे रही है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फोन, जॉब आईडी, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी। ओके, अब हमें डिपार्टमेंट, यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट आईडी वाइज, या सपोज वी हैव द जॉब आईडी। ओके, सो जॉब आईडी वाइज हमें टोटल सैलरी कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है, और हर जॉब आईडी पे कितने एम्प्लॉय है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे हम आए, सेलेक्ट, यहाँ पे हमने लिया जॉब आईडी कॉमा काउंट ऑफ जॉब आईडी। अब यहाँ पे हम जॉब आईडी वाइज काउंट कर रहे हैं, तो पहले हम टेबल का नाम ले लेते हैं, फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे हमने किया ग्रुप बाय, और यहाँ पे हमने दे दिया जॉब अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम कितनी जॉब आईडीज हैं और हर जॉब आईडी पे कितने लोग काम कर रहे हैं ये हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एंटर किया। तो यहाँ पे कितने अकाउंट मैनेजर हैं, कितने VP हैं, कितने हम फ्लाइंग, और कितने अकाउंट हैं, कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, कितने क्लर्क हैं, कितने साइट मैन हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? ओह, ये क्या किया? ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, कि यहाँ पे हमारे पास ये एम्प्लॉयज़ की टेबल है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे रन कराया, और एम्प्लॉयज़ की टेबल में अब हमने जॉब आईडी वाइज कितनी 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 वैल्यूज है वो तो हमने यहाँ पे पता कर ली। लेकिन अब जॉब आईडी वाइज कितनी कितनी सैलरी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने इसी में जॉब आईडी काउंट के साथ में हमने यहाँ पे दे दिया सम ऑफ सैलरी। ओके, और हमने इसको यहाँ पे सम कराया, तो टोटल प्रेसिडेंट 24,000, टोटल जितने भी हमारे पास एडिशनल VP हैं वो $34,000 है, देन IT प्रोग्रामर इतना है। ये हमारे ओवरऑल जो कंपनी में जो सैलरी का लेवल है वो यहाँ पे हमें समझ में आ गया। इसमें आप यहाँ पे एलियास दे सकते हो एज काउंट ऑफ एम्प्लॉय, और यहाँ पे सम ऑफ सैलरी में एज टोटल सैलरी। ओके, एंड यहाँ पे इसको रन कराया तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें
जॉब आईडी, काउंट ऑफ एम्प्लॉय एंड टोटल सैलरी हमें यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल गई। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसमें एक एक लास्ट चीज और आती है कि अब सपोज यहाँ पे ये सैलरी तो हमें मिल गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना जो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा सैलरी जा रही। तो हमें यहाँ पे सैलरी को हमें ऑर्डर बाई करना है, राइट। तो हम यहाँ पे ऑर्डर बाई करेंगे, या हमें कोई और टेबल ले लेते हैं, हम उसमें ऑर्डर बाई करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये टेबल है। डिपार्टमेंट टेबल नहीं, रहने दो, कोई दूसरा डेटाबेस ले लेते हैं। कस्टमर ऑर्डर। ठीक है, अब कस्टमर ऑर्डर में हमारे पास अमाउंट कहीं पे है। हम यहाँ पे ऑर्डर आइटम्स हैं। ठीक है, ऑर्डर आइटम में आइटम्स में यूनिट प्राइस है। अब हमें यहाँ पे हम देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीओ डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स। ओके, ये हमारे पास टेबल है, हमने इसको रन कराया। ओके, हम यहाँ पे प्राइस है। अब प्राइस सबके अलग अलग आ रहे हैं। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अरेंज दिस एंटायर फाइल इन अ वे कि प्राइस जो सबसे ज्यादा है वो हमें सबसे ऊपर दिखाई दे, और जो सबसे कम है उसके बाद नीचे दिखाई। तो हमें प्राइस को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे करना क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीओ डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स, फिर ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई हमने दिया यहाँ पे यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, हमने यहाँ पे दे दिया यूनिट अंडरस्कोर प्राइस। तो इससे क्या होगा, जैसे हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, यू कैन सी नाउ द यूनिट प्राइस वाइज ये यहाँ पे तो 5.65 वाले सबसे ज्यादा है। अभी यहाँ पे ये सबसे कम प्राइस है। अभी हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट किया, डिसेंडिंग में सॉर्ट नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम प्राइस आ रहा है, फिर उसके बाद 7 वाले आ गए, फिर उसके बाद 8 वाले आ गए। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। हमने यहाँ पे डिसेंडिंग कर दिया, डिसेंडिंग, DES DESC हमने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे अब सबसे जो ज्यादा प्राइस है $49, यहाँ ये यहाँ पे सबसे पहले आ गया। इसके बाद फिर इससे नीचे वाले प्राइस के आएंगे, तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? लग रहा है सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चिंकी, शिवानी, मानसी? या सर इसमें ऑर्डर बाय यूज करेंगे ना हमेशा? हाँ, हम इसमें ऑर्डर बाई ही यूज करेंगे। ठीक है, अगर असेंडिंग में करना है तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है, अगर डिसेंडिंग में करना है तो हमें यहाँ पे DESC कीवर्ड देना पड़ेगा। ठीक। ओके, यस। क्लियर है? सर आप कल की और आज की रिकॉर्डिंग सेंड कर देना एक बार। हाँ, मैं सेंड कर दूंगा। ओके, ओके सर। तो कल की रिकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली, लेट मी चेक, शायद वो अपलोड हो गई होगी तो आपको चैनल से मिल जाएगी। नहीं तो अगर यहाँ पे पड़ी होगी तो मैं दे दूंगा। ओके सर। कल की रिकॉर्डिंग DF105, नहीं, कल की रिकॉर्डिंग चैनल पे जा चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो कल कल वाली रिकॉर्डिंग आपको चैनल पे मिल जाएगी। आज वाली जो रिकॉर्डिंग है ये अभी तो रहेगी, लेकिन 24 आवर्स में फिर यहाँ से हट जाती है। ठीक है, तो मैं फिर वो आपको भेज दूंगा। ओके सर। ठीक ठीक है, तो मैं ये पूरा जो कोड है ये मैं कॉपी करके आपको दे देता हूँ, तो आप इसको रेफर कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये आज का कोड है, मैं इसको आपको एज इट इज भेज दूंगा। ठीक है, तो विल कीप इट एट दिस फॉर टुडे। यहाँ पे हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आना बाकी हैं, तो कल हम इसमें कुछ पहले थ्योरी वाली चीज़ें देखेंगे। इसके बाद फिर हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि थ्योरी वाले हैं, वो पहले आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है,
तो जब आप उसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, विल कीप इट एट दिस फॉर टुडे एंड विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। काफ़ी लेट हो जाते हैं फिर, चूंकि मेरे पास आगे भी काफ़ी चीज़ें लगी होती हैं क्यू में, तो ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर मेरे लिए इशू होता है।